Okay, we finished with the topics of second substage of thorax. We have to start with we did the applied anatomy also. So आज का lecture जो है, it's basically the revision. कोई special topic अगर आप revise करना चाहते हैं तो you can tell me. आप chat के through मुझे बता दें. Otherwise we just go through the portion of heart quickly. Especially I think I'll go through the blood supply, that is more important. बाकी जो इसकी gross anatomy है, you need to learn that. वो ज़्यादा लिखने को नहीं आती. But important is the blood supply, conducting system, nervous system, conducting system. Yes, I thought so. तो हम conducting system कर लेते हैं और साथ साथ मुझे आप बताते जाएं कोई और आपने करना है उसका any other topic you need to revise. So I'll just open up the vasculature of heart. Okay. So conducting system पहले आया था तो we'll start with the conducting system. इसके end में just remind me, I'll show you the diagrams you need to make, because मैं जो आपको बताती हूँ वो मेरे ख्याल है वो उसकी बजाय आप कुछ और बना देते हैं. Maybe the figure number is different in your books. So I'll just show you the diagrams which need to be made, because these are the diagrams which you have to sometimes make for the answer of a question also, that comes as a question. So आपको पता है मैं आपको ज्यादा डायग्राम्स नहीं देती, 3 से 4 होते हैं, लेकिन वो डायग्राम्स वो वाले होते हैं जो ड्रॉ करने के लिए आते हैं. ठीक है. So we'll start with the conducting system. Conducting system में क्या है? We have a pacemaker. Pacemaker क्या होता है? Which initiates the impulse. So pacemaker में क्या आता है? Sinoatrial node. Sinoatrial node is a special type of cardiac muscle fiber. Basically cardiac muscle ही होता है, लेकिन वो special type होता है. It is called the nodal tissue. It is specialized to initiate the uh, cardiac impulse. So this is situated at the junction of superior vena cava with the right atrium at the upper end or the superior end of sulcus terminalis, and it is just deep to the epicardium. अब एपिकार्डियम है, मायोकार्डियम है, एंडोकार्डियम है. तो एपिकार्डियम और मायोकार्डियम के दरमियान में जस्ट डीप टू द एपिकार्डियम साइनोएट्रियल नोड होता है एट द अपर एंड ऑफ सल्कस टर्मिनालिस एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा विद द राइट एट्रियम. तो आपको लोकेशन लिखनी पड़े तो आपने ये सारा कुछ लिखना है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे इनिशिएट होता है इम्पल्स. अब इम्पल्स जब एक दफा इनिशिएट हो गया तो इट इज गोइंग टू रीच द एवी नोड. एवी नोड जो है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. This is the second node. It has the nodal tissue, but this does not initiate the impulse. Initiation जो होती है वो साइनोएट्रियल नोड से होती है. Then it reaches the AV node through the myogenic pathway. Myogenic का क्या मतलब है कि muscle fiber के through it reaches the AV node. There is no conducting pathway as such in between the SA node and the AV node. जो conducting pathway बाद में आता है AV node के, that is separate. These are separate fibers. Conducting जो tissue है between SA node and AV node is basically the muscle fiber. So it reaches the AV node. Why is it called the AV node? Atrioventricular. It is in the region of AV region. AV region जो area है वहाँ पे होता है, but it is at the lower end of interatrial septum, posterior-inferiorly interatrial septum में है. Then this is also called AV node because this is also nodal tissue. उसके बाद the conduction, because ये जो conduction myogenic है तो it reaches throughout the region of the right atrium. So इससे इसकी contraction होती है. But after AV node we have a specific bundle through which the conduction is going to, the impulse is going to reach the ventricles. So after AV node we have the AV bundle. AV bundle, these are specialized fibers, conducting fibers, which are going to take the impulse from the AV node towards the ventricles. AV bundle जब it passes through the lower part of interatrial septum, then the membranous part of the interventricular septum. As you know, we have two parts, muscular part hai or membranous part hai. Membranous part is the upper part. So it passes through the membranous part of the interventricular septum. When it reaches the junction of these two parts at the upper end of the muscular interventricular septum, it divides into two divisions. There's a right bundle branch which goes towards the right ventricle. Then there's a left bundle branch which goes towards the left ventricle. Now these branches, since the muscular part is quite thick,
These branches are, the right one is just under the endocardium, and the left one is also just under the left endocardium, the lining of the left ventricle. So just underneath, just deep to the endocardium, we have the right and the left bundles. So the right one reaches the right ventricle, and then it sends the impulse to the Purkinje fibers, which are the specialized fibers which have to take the conduction to the myocardium of the ventricles. So right one, when it reaches the right ventricle, there's a special band, as I told you, septomarginal band or specialized trabecula, which is also called the moderator band. It This is only present in the right ventricle. It carries impulse right from the interventricular septum, right from the right bundle branch to the anterior pupillary muscle. So this is a shorter pathway. The impulse reaches from the right bundle towards the anterior pupillary muscle in a much shorter time than the rest of the Purkinje fibers. Okay, on the left side, again, we have the left bundle branch, which is just underneath or just deep to the endocardium of the left ventricle, and then it enters the impulse enters the Purkinje fibers, and it activates the left ventricles also. So this is basically the anatomy of the conducting system, but we have to see the the supply of the conducting system also, because this is very important. So as I told you, we have the conducting system. Heart generates and transmits impulse at a regular interval by specialized nodal tissue. This I've told you. These are just slides of those atrioventricular node, which is present at the posterior inferior part of the interatrial septum. So SA node is basically supplied by 80%, in 60% of the people it is supplied by the right cardiac artery, and 40% is supplied by the left cardiac artery. So right cardiac artery or right coronary artery is very important. Both of them are important, of course, but for SA node, in 60% of the people, right coronary artery supplies the SA node. So this is the supply of SA node, the blood supply, and it is stimulated by sympathetic division of the autonomic nervous system, which accelerates the heart rate. की डिटेल में हम पढ़ने के sympathetic action क्या होता है, but parasympathetic accelerates the heart rate, and parasympathetic tries to reduce the rate of the heart. Then AV node, as I told you, where it is present, AV node is also supplied in 80% of the people by the right coronary artery. AV bundle is the bridge between atria and the ventricular system, as I told you, and I told you the rest of the anatomy also. Let me go to the uh, blood supply. So this is the diagram of the blood supply of the conducting system, basically. So this is the right coronary artery arising from the right coronary sinus of the ascending aorta. First branch it gives is the SA nodal branch. So this is the SA node. It gives first branch to the SA nodal tissue. And then there's a posterior interventricular branch of the right coronary artery in the dominant area. Also in the dominance, as you know, the dominance is due to the presence of posterior interventricular branch. This also gives a branch to SA node and AV node. Uh, Not the SA node, sorry, the AV node. So posterior interventricular branch gives branch to the SA node, plus the terminal part of the right coronary artery also gives a branch to the AV node. ठीक है, ये हम कर लेते हैं, sympathetic, parasympathetic also. Okay, so SA node is supplied by the first branch of the right coronary artery. AV node is also supplied by the terminal part of the right coronary artery, plus a branch from the posterior interventricular artery. Okay, the bundles are supplied by, since they are present in the interventricular area, an interventricular septum is supplied in the anterior two-thirds by the anterior descending branch of the left coronary artery. This is the anterior ascending branch of the left coronary artery, and this gives um, blood supply to the anterior two-thirds of the interventricular septum, and the posterior two-third is supplied by the posterior interventricular artery. So both of these interventricular arteries, anterior as well as posterior, both of them are very important for the blood supply of the conducting system.
ओके, उसके बाद आ जाता है द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज बेसिकली ऑफ द हार्ट, is basically autonomic nervous system. Autonomic nervous system, as you know, comprises of sympathetic and parasympathetic system, but we also have the visceral efferent fibers. So मैं आपको बार बार बताती हूँ कि when you are writing about the nerve supply of the heart or nerve supply of any of the viscera of the body, when you give the autonomic nervous system, you have to also mention the visceral efferent fibers, because autonomic nervous system is basically the efferent system. सो इफरेंट सिस्टम तो आप बता देते हैं जब आ जाता है इसका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में, दैट कवर्स द इफरेंट सिस्टम. बट इफरेंट सिस्टम of visceral fibers of viscera are also very important because they convey the reflexive fibers as well as the nociceptive fibers. So afferent fibers conveying the reflexive part, due to which the reflex action takes place, that takes the same pathway as the parasympathetic fibers. So reflex efferent fibers take the pathway of parasympathetic system and they reach the brain stem. And the nociceptive fibers, which are the pain fibers, they take the pathway of sympathetic fibers and they reach the spinal cord. So you have to remember this. Okay, अब इसका action क्या होता है sympathetic का? As you know, sympathetic stimulation causes increased in heart rate, increase in the conduction of the heart rate, increases the force of contraction. At the same time, it also increases the blood flow through the coronary vessels. How does it increase the blood flow? बाकी बॉडी में तो ये होता है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, बट देयर आर 3 रीजंस एज आई टोल्ड यू. वहां पे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन लीड्स टू वेजो डायलिटेशन. एक तो कॉरोनरी मसल्स हैं, एक आपके स्केलेटल मसल्स हैं और एक जेनिटेलिया. इसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बॉडी में लीड्स टू, in these 3 areas it leads to dilatation of the vessels. जो भी उस एरिया के वेसल्स हैं, हार्ट के हैं तो कॉर्नरी वेसल्स की डायलिटेशन हो जाएगी, स्केलेटल मसल्स हैं तो उसकी वेसल्स की डायलिटेशन होगी. इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन लीड्स टू वेजोकंस्ट्रिक्शन. ठीक है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक तो मैं आपको बता रही हूँ. ओके, उसके बाद क्या होता है, एक तो ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है फाइबर्स के थ्रू, और फिर एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन भी होती है थ्रू सुप्रारेनल ग्लैंड. जैसे मैंने आपको बताया था, एड्रेनल ग्लैंड भी उन्हें कहते हैं, तो इनके थ्रू भी एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन होती है. ओके, सो एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन जो होती है, यहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, दैट इज ऑल फिजियोलॉजी, वो आप उसमें पढ़ लेंगे. सो ये जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रही है, ये डायग्राम से बड़ा अच्छा आपको समझ आएगा कि दिस इज द लैटरल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. लैटरल हॉर्न जो है, दिस इज प्रेजेंट फ्रॉम T1 टू L2 तक. तकरीबन एडल्ट्स में लैटरल हॉर्न इज प्रेजेंट, from which the sympathetic fibers they come out. The preganglionic sympathetic fibers, they come out of there through the motor route and they enter the spinal nerve, and from spinal nerve through the wide communicating branch they enter the paravertebral chain ganglion, which is the paravertebral sympathetic chain ganglion. यहाँ पे आता है और यहाँ से फिर post ganglionic fibers they reach the heart. This is the sympathetic pathway. अब पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, इसका जो दे कम थ्रू द वेगस नर्व का जो प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूक्लियस है, दैट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन स्टेम, मिडल ऑब्लोंगेटा में होता है. वहां से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स दे कम डाउन थ्रू द वेगस नर्व, और इसका पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है न्यूरॉन, इट इज प्रेजेंट नियर द जो पैरासिम्पैथेटिक है, उसके सारे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन होंगे, दे आर नियर द विस्रा, दे आर गोइंग टू सप्लाई. तो ये हार्ट को सप्लाई कर रहे हैं, तो ये हार्ट रीजन के बिल्कुल पास होगा, या तो कार्डिक प्लेक्सिस में होगा या फिर इट इज गोइंग टू बी इन द वॉल ऑफ द एट्रिया. सो यहाँ पे आके पोस्ट गैंग्लियोनिक, यहाँ पे साइनेप्स होगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर गोइंग टू सप्लाई द हार्ट. सो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ये है, और इसके थ्रू ये दोनों फाइबर्स जो हैं ये कार्डिक प्लेक्सिस बनाते हैं. वेयर इज द कार्डिक प्लेक्सिस लोकेटेड? इट इज लोकेटेड एंटीरियर टू द बाइफिकेशन ऑफ द ट्रेकिया. बाइफिकेशन कहाँ पे हो रही होती है? स्टर्नल एंगल के एरिया में होती है, ठीक है, स्टर्नल एंगल के लेवल पे होती है. सो एट दैट पॉइंट, anterior to the bifurcation of trachea there is cardiac plexus,
और कार्डिक प्लेक्सिस, सो इसका मतलब है कि जो आर्च ऑफ एओर्टा है उसके थोड़ा सा नीचे होता है आर्च के, ठीक है, उसके कंकैविटी में होता है ये कार्डिक प्लेक्सिस. एंड कार्डिक प्लेक्सिस कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एज वेल एज द विसरल एफरेंट फाइबर्स. अब सिंपैथेटिक की बात होगी, पैरासिम्पैथेटिक की भी मैंने आपको ओरिजिन बता दिया और आता कहाँ से है. इसका एक्शन क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन लीड्स टू स्लोइंग ऑफ द हार्ट रेट. इट स्लोज डाउन द हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी कम हो जाता है, coronary vessels को ये constrict करते हैं. So parasympathetic mechanism is basically conserving the energy of the body. So ये slow down करता है सारे processes को, और इसके अंदर post synaptic जो है वो रिलीज करते हैं एसिटाइल कोलिन, जिसके रिसेप्टर्स जो है वो मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं. सो नर्व सप्लाई का ये तो एक तो इफरेंट सिस्टम हो गया. अब इफरेंट सिस्टम मैंने आपको बताया था दो उसमें टाइप ऑफ इम्पल्सेस होते हैं, एक तो रिफ्लेक्सिव होते हैं और एक नोसिसेप्टिव होते हैं. सो रिफ्लेक्सिव जो होते हैं दे आर कंसर्न विद द रिफ्लेक्स ऑफ वेरियस फंक्शंस ऑफ द हार्ट. रिफ्लेक्स कैसे होता है? पर्टिकुलरली हार्ट के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट ये रिफ्लेक्स होता है. एंड दिस रिफ्लेक्स मैकेनिज्म is controlled by the centers in the brainstem. So that's why these fibers, they follow the pathway of the parasympathetic fibers and they pass backwards in the opposite direction in the vagus nerve, and then they enter into the reflex जो center है, which is present in the brainstem. Second जो nociceptive है या pain fibers हैं, they follow the sympathetic pathway and they enter the spinal cord from T1 to T6, T7 तक भी होता है, because book में तो T4, T5 है, but T7 तक भी होता है, because as I told you previously in the previous lecture that T7 का जो dermatome है that lies in the epigastric region just below the sternum. Ab in some of the cases the patients have pain in the epigastrium, but the problem lies in the heart. तो heart जो myocardial infarction की angina की कई दफा pain जो है वो epigastrium में भी होती है. That is the dermatome of T7. So that means कि heart के अंदर जो fibers आ रहे हैं, sympathetic जो stimulation आ रही है वो T7 तक भी जाती है. So ये भी हो गया. उसके बाद क्या आ जाता है, आप करना चाह रहे हैं ओवरव्यू, सारा हार्ट का ओवरव्यू. वील सी इफ यू हैव इनफ टाइम, बट वेस्कुलेचर यू वांट मी टू जस्ट go through the blood supply of the heart. Okay, so blood supply में क्या आती है? आर्टरीज आती हैं. ब्लड सप्लाई में आपने क्या लिखना होता है? हमेशा आपको बताया जाता है बार बार, you have to mention the arteries as well as the veins also. ठीक है. So we have the coronary arteries and we have the cardiac veins. तो एंडोकार्डियम एंड सब एंडोकार्डियल टिश्यू में बेसिकली ये लोकेटेड होती हैं. एंडोकार्डियम इज द इनर लाइनिंग, और सब एंडोकार्डियल टिश्यू का क्या मतलब है? एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम के दरमियान में. दिस इज द एरिया जहाँ पे ये छोटी छोटी वेसल्स जो होंगी उनकी ब्रांचेस होंगी. ठीक है. जो बड़ी होती हैं दे आर लाइंग जस्ट, जो मेन आर्टरीज जो बिगर आर्टरीज है दे आर लाइंग जस्ट डीप टू द एपिकार्डियम. दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड. जो छोटी वेसल्स होती हैं दे आर ऑन द इनर साइड. तो एंडोकार्डियम सब एंडोकार्डियल टिश्यू जो है वो that is also supplied by the diffusion from the chamber itself. हार्ट के अंदर सारे चेम्बर्स हैं, उनके अंदर इट इज फिल्ड विद ब्लड. तो एंडोकार्डियम और एंडोकार्डियल टिश्यू जो है वो डिफ्यूजन से भी उसको ब्लड सप्लाई मिल जाती है. सो ज्यादा जो माइक्रोवास्कुल जो ज्यादा वैस्कुलेचर, ये माइक्रोवास्कुलेचर होगी जो उसको सप्लाई करेगी या डिफ्यूजन के थ्रू आ जाएंगी इन द एंडोकार्डियम एंड सब एंडोकार्डियल टिश्यू. जो बड़ी वेसल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन दी सब एपिकार्डियल एरिया. अच्छा जी. अब कौन सी बड़ी बड़ी वेसल्स हैं हमारे पास? राइट कॉर्नरी आर्टरी है और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी. राइट कॉर्नरी आर्टरी राइजेस फ्रॉम द राइट sinus of the ascending aorta and passes between the pulmonary trunk and the auricle. Right auricle यहाँ से आती है, it comes out and first branch it gives is the SA nodal branch which goes to the SA node in 60% of the people, and then it enters the coronary sulcus. This is the coronary sulcus which is present between the atria and the ventricle, and then it gives interior ventricular branches also, and then it at the area of inferior, just near the inferior border, it gives the marginal branch. This is a bigger branch, right marginal branch of the right coronary artery, and then it turns around the right border of the heart
and it enters the coronary sulcus on the posterior surface, and then it supplies the AV node, and then it also gives posterior interventricular branch. तो क्वेश्चन ये आता है कि how do we decide about the dominance of the heart? So whichever artery gives the posterior interventricular branch, it is called the dominant branch. If posterior interventricular artery is given by the right coronary artery, तो we say कि right dominance है. If it is given by the left coronary artery, so we say that is the left dominance. तो mostly 80% लोगों में 60% लोगों में राइट डोमिनेंस होती है. ओके, उसके बाद आ जाती है आपके लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी. अच्छा, इसका जो टर्मिनल पार्ट है राइट मार्जिनल, राइट जो कॉर्नरी आर्टरी का जो टर्मिनल पार्ट है, ये कॉर्नरी सल्कस में क्रस से थोड़ा सा आगे चला जाता है. व्हाट इज क्रस? क्रस इज द इंटरसेक्शन बिटवीन द कॉर्नरी सल्कस एंड द इंटरवेंट्रिकुलर जो ग्रूव है. ये ग्रूव आ जाता है जिसके अंदर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है, एंड दिस इज द कॉर्नरी सल्कस. इन दोनों का जो यहाँ पे जंक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड द क्रस. तो ये क्रस से थोड़ा सा टर्मिनल ब्रांच इसकी आगे चली जाती है. लेफ्ट coronary artery rises from the left sinus of the ascending aorta between the pulmonary artery and the left auricle. This enters into the coronary sulcus. और फिर coronary sulcus, जाहिर है sulcus जो है all around is between the atria and the ventricle. Just at the start of the interventricular groove, anterior interventricular groove, it divides into two branches. एक तो इसकी circumflex branch है बहुत बड़ी, और second इसकी anterior interventricular branch है. Left इसको हम ये भी क्या कहते हैं, anterior interventricular branch कहते हैं, descending anterior descending branch भी कहते हैं. ठीक है. So anterior descending branch या anterior interventricular branch ये आगे से जाके एक और ब्रांच भी दे देती है जिसको हम कहते हैं डायगोनल ब्रांच, लैटरल ब्रांच और डायगोनल ब्रांच. और उसके बाद सर्कमफ्लेक्स ब्रांच जो है. अब ये इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच जो है, दिस सप्लाइज इंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर septum, and posterior interventricular artery supplies the posterior 1/3 of the septum. ये जो interior interventricular artery, when it reaches the apex, it turns around and enters the posterior interventricular groove. So यहाँ पे दोनों का anastomosis हो जाता है. Okay, sinus भी हम करते हैं, ये हम कर लें. उसके बाद it gives the marginal artery, जैसे right ने दिया था, it also gives the marginal artery, and then it turns around in the coronary sulcus and goes towards the posterior side. और posterior side पे फिर ये enter होके ये यहाँ पे दोनों का anastomosis हो सकता है. जैसे हमने बाद में पढ़ा था कि these are basically the functional end arteries. Anastomosis does exist, but it does not really, it is not patent all the time. तो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी जो है एक ऐसे नोडल ब्रांच भी देती है 40% ऑफ द पीपल, एवी नोडल ब्रांच भी देगी, लेकिन मोस्टली ये सप्लाई करती है वेंट्रिकल्स को. और इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है इंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ओके, ये दिस इज द पोस्टीरियर व्यू. यहाँ पे राइट कॉर्नरी आर्टरी टर्न कर रही है इन द पोस्टीरियर, यहाँ क्रस से आगे थोड़ा सा आगे निकल गई है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच दे रही है. ये इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच थी, and it has turned around the apex and it has reached the lower part of the posterior interventricular groove, जहाँ पे इन दोनों का anastomosis हो सकता है. Okay, this was about the artery. तो right coronary artery जो ऐसी नोडल ब्रांच देती है 60% में, right marginal देती है, AV नोडल ब्रांच देती है 80% में, posterior interventricular ब्रांच देती है. सो अगर ये देगी ब्रांच तो इसको हम कहेंगे कि राइट डोमिनेंस है हार्ट की. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल ब्रांच जो है वो पोस्टीरियर 1/3 को ये ज़ाहिर सप्लाई करती है, और टर्मिनल ब्रांच जो है वो क्रस से आगे निकल जाती है. सो सप्लाई कहाँ कहाँ करेगी? राइट एट्रियम को करेगी, मोस्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल को करेगी, डायफ्रेगमेटिक सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को करेगी, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को करेगी, एसए नोड को 60% करेगी, एवी नोड को 80% ऑफ द पीपल करेगी, और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक करेगी. ओके, उसके बाद इफ वी गो ऑन, ये मैंने आपको डोमिनेंस का बता दिया. अब डोमिनेंट पैटर्न जो है 67 में क्या होता है? राइट डोमिनेंस होती है. इसका मतलब है कि राइट कॉर्नरी आर्टरी गिव्स दी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी. 67 में राइट डोमिनेंस है.
15% में लेफ्ट डोमिनेंस होती है और बाकी जो 18% होती है वो को डोमिनेंट होता है। को डोमिनेंट का मतलब है कि दोनों तरफ से आर्टरी आ रही है। सो 67 में राइट डोमिनेंस, 15% में लेफ्ट डोमिनेंट होते हैं लोग, एंड 18% ऑफ द पीपल हैव arteries from both, so this is called codominance. Coronary collateral circulation में क्या होता है कि basically they are functional end arteries. Functional क्या कि they function as end arteries, but anastomosis does exist. अब anastomosis कहाँ exist करता है? सब एपिकार्डियल और मायोकार्डियल ब्रांचेस जो होती हैं इनकी जो branches हैं, they do sometimes anastomose with extracardiac vessels such as thoracic vessels. Extracardiac vessels कौन सी होंगी? जो बाकी thorax को तो सप्लाई कर रही हैं लेकिन हार्ट को नहीं कर रही। तो सब एपिकार्डियल और मायोकार्डियल वेसल्स जो है वो एक्स्ट्राकार्डिक वेसल्स के साथ भी उनकी थोड़ा बहुत एनास्टोमोसिस एग्जिस्ट करता है। फिर मैंने आपको बताया कि टर्मिनल पार्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी का आपस में एनास्टोमोसिस होता है। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर का भी आपस में एनास्टोमोसिस होता है। सो पोटेंशियल इज देयर फॉर दिस एनास्टोमोसिस टू ओपन अप। अगर कहीं पे स्लो ब्लॉकेज होती है आर्टरी की, कॉर्नरी आर्टरी की, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो लैटरल सर्कुलेशन है दिस ओपन्स अप एंड दिस सप्लाइज द ब्लड टू द एरिया। लेकिन मोस्टली ये पेटर्न नहीं होते, दे आर क्लोज डाउन। लेकिन जिस तरह लिम्स में होता है कि कोलैटरल सर्कुलेशन जल्दी डेवलप हो जाती है, यहाँ पे इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती। कॉर्नरी जो टिश्यू है इसके अंदर कोलैटरल सर्कुलेशन इतना जल्दी डेवलप नहीं होती, बट देयर इज अ पोटेंशियल। ठीक है, तो ये कोलैटरल सर्कुलेशन में आप लिख सकते हैं कि किन दोनों के दरमियान में यहाँ पे होती है। ओके, अब वेन्स की तरफ जब हम आते हैं तो एक हमारे पास ग्रेट कार्डियक वेन है which is the main tributary of the coronary sinus. अब great cardiac vein जो है वो कहाँ पे it lies in the anterior interventricular groove, जहाँ पे anterior interventricular artery blood नीचे की तरफ लेके जा रही है और ये जो this is the area या एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है, यहाँ पे एंटीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी इस साइड पे ब्लड लेके जा रही है और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन द वीनस ब्लड इज गोइंग। अब जब कॉर्नरी सल्कस में आते हैं तो कॉर्नरी यहाँ पे इस दिस लोकेशन वी हैव द सर्कमफ्लेक्स ब्रांच टेकिंग द ब्लड इन द लेफ्ट डायरेक्शन, और ग्रेट कार्डिक वेन में भी उसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में दोनों वेन में भी और आर्टरी में भी ब्लड जा रहा होता है। सो ग्रेट कार्डिक वेन यहाँ पे शुरू होती है, enters the coronary sulcus and then it turns towards the left side, turns around, और जब ये यहाँ आती है, this is the posterior view, posterior side पे आ जाती है, it joins with the oblique vein of the left ventricle of the left atrium and forms the coronary sinus. So coronary sinus का की formation क्या होती है? Junction of left cardiac great cardiac vein with the oblique vein of left atrium, यहाँ पे coronary sinus बनेगा। coronary sinus के अंदर फिर आपके अंदर ज्वाइन कर देता है मिडिल कार्डिक वेन। मिडिल कार्डिक वेन इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। तो ये वो वाली एरियाज ड्रेन करेगा जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जिसको सप्लाई करती है, और ग्रेट कार्डिक वेन वो वाले एरिया ड्रेन करेंगे जिनको एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी सप्लाई करती है। ओके, सो एक ग्रेट कार्डिक वेन होगी, एक मिडिल कार्डिक वेन होगी, और स्मॉल कार्डिक वेन जो है वो एरिया ड्रेन करती है जो राइट मार्जिनल आर्टरी जिनको सप्लाई करती है। सो दिस आल्सो एंटर्स द कॉर्नरी साइनस। सो ग्रेट कार्डिक वेन, मिडिल कार्डिक वेन, स्मॉल कार्डिक वेन की बात होगी। एक होती है एंटीरियर कार्डिक वेन, इट बिगिंस ओवर द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द राइट वेंट्रिकल, और ये यूजुअली राइट एट्रियम में डायरेक्टली एंटर कर जाती है, इट डज नॉट एंटर इनटू द कॉर्नरी साइनस। सो ये भी एमसीक्यू आ जाता है कि एंटीरियर कार्डिक वेन जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी, कॉर्नरी साइनस की है या नहीं है। सो इट दिस एंटर्स डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम and it begins over the anterior surface of the right ventricle. Let's see अगर यहाँ पे anterior cardiac vein कहीं पे नहीं बनाई हुई। Anyway, then we have the small cardiac veins. These are Thebesian veins. These are minute veins. They begin in the capillary bed of the myocardium and open directly into the chambers of the heart. So these are very small microvasculature है, small cardiac veins है, Thebesian veins जो directly मायोकार्डियम वाले एरिया से डायरेक्टली चेम्बर में ही चली जाती हैं। ठीक है, एक है ओब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम,
This is also called the vein of Marshall. It descends over the posterior wall of left atrium and it merges with the, this is it, left atrium के posterior wall पे, it merges with the great cardiac vein and then there is the formation of coronary sinus. So this is the main chamber. This is the main vessel, coronary sinus, which enters into the right atrium. और ये कहाँ पे enter होती है? Between the, ये मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ. So जो right coronary sinus है, ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा एंड ट्राइकस्पिड वेन के दरमियान में इसकी ओपनिंग होती है, वीनस ड्रेनेज. लिम्फेटिक तो इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है. अच्छा जी, अब आप ये चाह रहे हैं कि मैं साइनस आपको थोड़ा सा बता दूं, तो साइनस भी अब थोड़ी देर में आपको बताती हूँ, बिकॉज ये पेरिकार्डियल साइनस वैसे आपको बताती हूँ बिकॉज दैट इज अनदर प्रेजेंटेशन. पिक्चर में आपको इसकी नहीं दिखा सकूंगी, बट आई विल टेल यू. पेरिकार्डियम इज बेसिकली consists of, एक तो fibrous pericardium होता है which is thick and tough and it does not give way, it basically prevents the over dilatation of the heart. उसके अंदर जो lining होती है that is the serous pericardium. अब serous pericardium की दो layers हैं, parietal भी है और visceral भी है, ठीक है ना. अब parietal और visceral के दरमियान में we have the pericardial cavity जिसके अंदर थोड़ा सा pericardial fluid होता है to prevent friction. अब ये जो विसल पेरिकार्डियम है, हार्ट के अंदर इतने सारे, मैं आपको हार्ट का डायग्राम दिखाऊं तो इतनी सारी चीजें हैं कि ब्लड वेसल्स भी हैं, ठीक है. तो ये इसने इनके ऊपर भी ये, क्या होता है कि जब इसको कवर कर रहा होता है तो इसने रिफ्लेक्ट होके डिफरेंट एरियाज को कवर करना है, रिफ्लेक्शन होती है पेरिकार्डियम की. सो दिस इज पल्मोनरी ट्रंक एंड दिस इज द असेंडिंग एयोर्टा. दीज आर प्रेजेंट रिलेटिवली एंटीरियरली, और ये जो सुपीरियर वेना केवा होती है ये थोड़ा सा पोस्टीरियर होता है. तो इन दोनों के दरमियान में जब विस्टल पेरिकार्डियम जो रिफ्लेक्ट होता है, तो एक यहाँ पे एरिया बन जाता है जिसको हम कहते हैं साइनस, और दिस कैन बी एंटर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड. तो आप जब पेरिकार्डियम ओपन करते हैं ओपन हार्ट सर्जरी में, तो लेफ्ट साइड में इस जो ट्रांसवर्स साइनस है, पेरिकार्डियल साइनस, यहाँ से द सर्जन्स दे कैन एंटर देयर फिंगर्स. आपको मैं डायग्राम दिखा देती हूँ. इसमें था, आई डोंट नो, नहीं वो पेरिकार्डियम के डायग्राम में था. आपके बुक खोलें तो आपके डायग्राम आ जाएगा. क्या होता है कि जब हम ओपन करते हैं ओपन हार्ट सर्जरी में, I'll show you this heart diagram. So when we do the open heart surgery, यहाँ से surgeons क्या करते हैं, fingers डालते हैं between the pulmonary trunk and ascending aorta anteriorly and superior vena cava posteriorly. यहाँ पे there's a sinus, this is area between these three vessels, और यहाँ से क्या करते हैं वो, इन दोनों को वो ligate कर देते हैं. जब इन दोनों को ligate कर देंगे तो फिर जो ब्लड सप्लाई है वो एक एक्स्ट्रा कार्डिक मशीन के थ्रू फिर होती है. एक्स्ट्रा कार्डिक मशीन के थ्रू हार्ट की सप्लाई जारी रहती है, और इन दोनों को वो टाई कर देते हैं, और फिर वो हार्ट की वो जो सर्जरी जो भी है वो करते हैं, ठीक है. सो दिस इज द ट्रांसफर साइनस. उसके बाद आ जाता है ओब्लीक साइनस. अब मैं देखती हूँ अगर कोई डायग्राम इस तरह का यहाँ पे बना हुआ है जहाँ पे आपको ओब्लीक साइनस थोड़ा सा पता चल जाए. Oblique sinus कहाँ पे है? That is present posterior to the at the base of the heart. Which base of the heart का किससे बनता है? Left atrium से बनता है. So outside the left atrium or the posterior side of the left atrium, we have the left atrium निकालते हैं हम. So this is the left atrium. ये तो inner side पे दिखाया है ना. तो posterior side पे क्या होता है कि left atrium की जो कवरिंग होती है विस्टल पेरिकार्डियम, यहाँ पे व्हेन इट टर्न्स अराउंड, एक तो नीचे इंफीरियर वेना केवा इसको आती है राइट एट्रियम में, और फिर उसके बाद ये पल्मोनरी वेन्स होती हैं राइट एंड लेफ्ट. पल्मोनरी वेन्स 4 वेन्स होती हैं, तो इनके ऊपर जब रिफ्लेक्शन होती है विस्टल पेरिकार्डियम की, तो यहाँ पे भी एक साइनस बन जाता है, इसको हम कहते हैं ओब्लीक साइनस. तो दिस इज अबाउट ट्रांसवर्स एंड ओब्लीक साइनस. और इनकी कार्डिक सर्जरी जब कर रहे होते हैं तो फिर ये हमें उसमें इम्पोर्टेंस होती है.
वी नीड टू लाइगेट द वेसल्स, और इन वेसल को लाइगेट करने के लिए हम साइनसेस को अप्रोच करते हैं और वहां पे हम वेसल्स को लाइगेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका sinuses. I want to show you the diagrams which you need to make. So अगर आप अच्छा जी, ये डायग्राम है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है बनाने के लिए। तो ये अगर आपको नजर आ रहे हैं, कैन यू सी दीज डायग्राम्स? अच्छा जी, ये स्क्रीन शेयर मैंने की हुई है, इसमें आप देख लें। एक तो ये डायग्राम है, ये पेरिकार्डियम की सप्लाई का, ब्लड सप्लाई का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आपने बनाना है। अब मेरी बुक में इसका फिगर नंबर मुझे 1.48 है। आई डोंट नो आपकी बुक से वो दूसरा, जाहिर है वो नया एडिशन आ जाता है तो फिगर नंबर्स कई दफा चेंज हो जाते हैं। सो दीज आर द डायग्राम्स जो आपने बनाने हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाती जाती हूँ। एक ये डायग्राम है जो कॉर्नरी सर्कुलेशन का, जो ब्लड सप्लाई आर्टेरियल सप्लाई की है। उसके बाद ये वीनस ड्रेनेज की है। उसके बाद दिस इज द डायग्राम ऑफ एओर्टा, जिसमें ब्रांचेस दिखाई गई हैं, एंटीरियर विस्टल ब्रांचेस, उसके बाद सेगमेंटल ब्रांचेस हैं, पैराइटल ब्रांचेस हैं। तो ये अब बनानी बहुत जरूरी है। उसके बाद ये एक अजाइगस सिस्टम और का पूरा डायग्राम है। ये राइट साइड पे जो डायग्राम है ये आप बना लें। और उसके बाद कंडक्टिंग सिस्टम का डायग्राम, ये वाला डायग्राम मेरे ख्याल स्नेल के अंदर था। यू कैन ओपन अप स्नेल एंड जस्ट लुक इट अप, क्योंकि केएलएम में ये नहीं था, ये स्नेल से मेरे ख्याल है मैंने लिया हुआ है। सो 1 2 3 4 5 6, दीज आर द 6 डायग्राम्स यू नीड टू मेक। सो आपको, कैन यू सी दीज डायग्राम्स? अच्छा जी, आप मुझे बता दें। ओके, सो ये डायग्राम्स प्लीज आप बना लें। पेरिकार्डियम की ब्लड सप्लाई, ठीक है। उसके बाद आगे ये कॉर्नरी आर्टरीज, कार्डिक वेन्स, अयोटा, एंड देन वी हैव द अजाइगस सिस्टम। ये वाली डायग्राम जो है आपको बनाने के लिए भी आ जाती हैं, एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाती हैं। सो ये आप बना लें। तो मंडे को आपकी सब स्टेज है। कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है और छोटे हैं, बहुत लंबे भी नहीं है, लेकिन प्लीज डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट। और क्योंकि पता चल जाता है बुक की वर्डिंग्स क्या है, और आप जब खुद से लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली। ओके, डायग्राम्स मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये कजाइगस सिस्टम का है, ये अयोटा का डायग्राम है, कार्डिक वेन्स है, कॉर्नरी आर्टरीज है, एंड दिस इज द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द पेरिकार्डियम। ये 6 डायग्राम्स हैं जो आपने बनाने हैं। अगेन कंसर्निंग दी सब स्टेज, जो आप एससीक्यू के आंसर देते हैं, प्लीज फ्रेज देम अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन विच इज आस्क्ड। आपने सिंपल कॉपी पेस्ट करके नहीं, हमने उसमें से आंसर एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, आपने आंसर एक्सट्रैक्ट करके लिखना है अपने वर्ड्स में, ठीक है ना। सो ये नहीं होता कि आप जो है वो बस एग्जैक्टली बुक की वर्डिंग्स लिख दें। जहाँ पे रिक्वायर्ड है जरूर लिखें, बट जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंगली आपने फ्रेज करना होता है ना अपना आंसर। ये तो नहीं है कि आप सारा कॉपी पेस्ट करके डाल दें और एग्जामिनर पे छोड़ दें कि वो उसमें से आंसर निकाल लें। ऐसे नहीं होता। सो आप जो है कोशिश करें कि जो भी टॉपिक पढ़े उसके क्वेश्चन खुद से भी बनाएं। हम तो आपको सब स्टेजेस में क्वेश्चन दे देते हैं, वो भी आप संभाल के रखें और उनको आंसर करें। अगर अभी नहीं भी आता, बुक खोलें, उसका आंसर ढूंढें, बाद में आंसर उसका, क्योंकि जो हम आपको देते हैं सब स्टेजेस में these are the questions which come again and again in the profs also. So अगर अभी आपको नहीं आ रहा सब स्टेज में for some reason, आप later on after the sub stage open up the book, make an answer and keep it, save it and learn it, so that आपको स्टेज में प्रॉब्लम ना हो। हेमी अजाइगस का कोर्स बता दूं? ओके, आई टेल यू। हेमी अजाइगस वेन जो है, जो अजाइगस और हेमी अजाइगस दोनों साइड पे असेंडिंग लंबर और सब कॉस्टल जो आर्टरी है उससे, सब कॉस्टल वेन, सॉरी, ये सब कॉस्टल वेन है और ये लंबर है, असेंडिंग लंबर। इन दोनों को मिलके लेफ्ट साइड पे हेमी अजाइगस बनती है, राइट साइड पे अजाइगस बनती है। अब हेमियाजाइगस जो है पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में एज इट असेंड्स, इट गेट्स द ट्रिब्यूटरी फ्रॉम 11th 10th एंड 9th इंटरकॉस्टल वेन ऑन द लेफ्ट साइड। ये हेमियाजाइगस लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। और 9th भी जब रिसीव कर लेती है, देन इट टर्न्स टुवर्ड्स द राइट।
T8 के लेवल पे हेमियोजाइगस टर्न्स टुवर्ड्स द राइट एंड जो thoracic duct के posteriorly जाके it enters into the azygous vein because zygus जो है वो तो राइट साइड पे जा रही है और हेमियोजाइगस जो लेफ्ट साइड की बाकी वेन्स है फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ जो इंटरकॉस्टल वेन्स है दे फॉर्म द accessory hemiazygous और T8 के लेवल पे they turn towards the accessory hemiazygous turns towards the right and enters the azygous system. सेकेंड थर्ड और फोर्थ जो है लेफ्ट साइड के दे फॉर्म सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन ऑन द लेफ्ट साइड और ये एंटर करती है लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन पे और समटाइम्स इट मे एंटर इनटू द एक्सेसरी हेमियोजाइगस वेन आल्सो. जो फर्स्ट इंटरकॉस्टल वेन है राइट और लेफ्ट साइड पे दोनों दे एंटर इनटू द ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स. लेफ्ट जो है वो लेफ्ट में जाएगी और राइट जो है वो राइट में जाएगी ब्रेकियोसेफेलिक में. सो फर्स्ट एंटर्स इनटू ब्रेकियोसेफेलिक वेन. ठीक है. सेकेंड थर्ड फोर्थ फॉर्म on the left side left brachiocephalic vein और the right side right brachiocephalic vein. left जो है brachiocephalic vein जो enter करती है left जो superior intercostal vein बनाती है second third fourth intercostal left superior intercostal vein बनाएंगे मिलके and they enter into superior into left brachiocephalic vein. Second third and fourth on the right side form right brachiocephalic vein and right intercostal vein superior intercostal enter into the azygous system और बाकी right वाली सारी azygous में जाती है left वाली फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट एसेसरी हेमियोजाइगस बनाएंगी 9 10th 11th जो है वो हेमियोजाइगस बनाएंगी. ये है बेसिकली इसका कोर्स. ये आपको याद रखना है और azygous system is the last vein to enter into superior vena cava before it joins the right atrium. ये आप याद रखें. सो हमारा टाइम जो है वो तकरीबन इतना ही है और कुछ 15 मिनट्स हैं हमारे पास. हेमियोजाइगस का कोर्स तो मैंने बता दिया. और कुछ आप पूछना चाहें? सो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डायग्राम आप बनाएं तो साथ साथ आपको फिर आ भी जाता है कि कौन सी वेन जो है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कौन सी कहाँ ड्रेन करती है. दिस इज इम्पोर्टेंट. अयोटा की आपको जिस तरह ये नीचे डायग्राम बनाया हुआ है कि ये एंटीरियर जो है ये विस्टरल आर्टरीज होती हैं. दीज आर अनपेयर्ड. ठीक है. साइड पे जो होती हैं लैटरल साइड पे पेयर्ड होती हैं ब्रांचेस. कुछ सेगमेंटल होती हैं और कुछ विस्टरल होती हैं जो एंड दे आर पेयर्ड ऑन द लैटरल साइड. ये लैटरल साइड पे आपको बी वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है. lateral paired vessel branches. Then we have the lateral paired parietal branches. ये parietal जो है ये body wall को जाएंगी. visceral जो है वो viscera में जाएंगी but they are paired. ठीक है. lateral हैं दोनों साइड पे. जो parietal है वो mostly posterolateral area में आती हैं और extreme lateral पे visceral आती हैं. Then we also have visceral unpaired branches which come out from the anterior part of the aorta. ये thoracic aorta में भी इसी तरह ही है और आगे जब आप जाएंगे when it goes into the abdominal aorta में भी ये basic pattern इसका continue करता है. So you need to know the branches of the thoracic aorta as well as the basic ये जो इसका diagram में बनाना भी आपको आना चाहिए. Then these are the cardiac veins, coronary arteries, and these are the this is the blood supply, shows the blood supply of the pericardium as well as the it has the nerves also. So ये nerves भी दिखा रहा है आपको, phrenic nerve भी दिखा रहा है जो supply करती है basically pericardium को. So ये तो हो गए आपके डायग्राम्स जो मैं आपको आप जो है वो पैटर्न डायग्राम भूल देते हैं और कुछ ऐसे डायग्राम जिनका कोई फायदा नहीं होता है. बिल्कुल आप अपने टाइम वेस्ट कर रहे थे वो ना बनाए तो बेहतर है. इससे बेहतर है कि आप डायग्राम बनाए एग्जाम में हमारा कवर हो गया कंडक्टिंग सिस्टम और इसकी बाकी भी हमने कवर कर दिया और नर्व सप्लाई कवर कर दी हमने. और उसके बाद आ जाता है कि अप्लाइड एनाटॉमी. अप्लाइड एनाटॉमी में अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो मुझे बता दें बिकॉज कल ही हमने की है कार्डियोकैपिटाइजेशन भी कर ली थी, सेप्टल डिफेक्ट भी कर लिए थे, स्ट्रोक, valvular heart disease. valvular heart disease में दो बेसिक
नैरो हो जाएगा और रीवेजिटेशन होती है हार्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं कोलैप्स भी कहते हैं, वैल्वुलर कोलैप्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस वजह से रीवेजिटेशन होती है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन, और जब जिसका लेफ्ट वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, माइट्रल वाल्व जो है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल अगर कोलैप्स है, तो then it will be revegetate back into the left atrium, natural value. तो जो ब्लड का फ्लो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और टर्बुलेंस पैदा होती है, जिससे क्या होता है ब्लॉडनेस अराइज करता है। तो ये दो बेसिक आते हैं। एओर्टिक वाल्व डिजीज, Aortic valve stenosis in particular is the most जो है बिग डिफरेंस अगर आप देखते तो दिस इज द मोस्ट कॉमन वेंट्रिकुलर डिफेक्ट है सेल्फी सीरीज ओपन only ventricular septum defect, यहाँ पे it may be a cause of other bigger abnormalities. Microbiology of summit है जिसमें there are 4 abnormalities altogether. इसमें भी one of the 4 is ventricular septum defect. और ऊंचा बोलती हूँ. सो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज मोस्ट कॉमन ऑफ द कार्डिक डिफेक्ट्स, और वाल्व के अंदर अगर आप देखें तो एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस इज वेरी कॉमन. उसके बाद एकोकार्डियोग्राफी में बेसिकली इट इज द अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट. तो अल्ट्रासोनिक कार्डियोग्राफी होती है. अल्ट्रासाउंड वी कैन आल्सो सी द valves of the heart, we can see the blood flow कि उसमें ये स्टेनोसिस और रिगजिटेशन ये भी जो है आप डायग्नोज कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है ईसीजी. अच्छा, उससे पहले था कॉर्नरी आर्टरी डिजीज. सो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में बेसिकली 3 पैटर्न्स होते हैं. या तो इन्फॉक्शन हो जाएगी, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन. इन्फॉक्शन में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई डज नॉट रीच द एरिया. ये तो इन्फाक्ट हो गया. उसके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फॉक्शन एंड नेक्रोसिस? इन्फॉक्शन तो हो गई, ब्लड नहीं पहुंच रहा, ठीक है ना. नेक्रोसिस द पैथोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ इन्फॉक्शन. तो जब पैथोलॉजिकल चेंजेस शुरू हो जाती हैं तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये नेक्रोसिस हो गया है. और कॉर्नरी एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि दे आर लिपिड डिपॉजिट्स इन द इंटेमा. इंटेमा इज द इनर लेयर ऑफ द आर्टरी, और वहां पे डिपॉजिट्स बनने शुरू हो जाते हैं, प्लाक्स बनते हैं इन द इंटेमा ऑफ द आर्टरी, और दिस लीड्स टू नैरोइंग ऑफ द वेसल. जैसे जैसे वेसल नैरो होती रहती है, ब्लड सप्लाई ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज होगा. और थर्ड जो इसमें आ जाती है चीज, एक तो मायोकार्डियल इंफाक्शन था, कॉर्नरी एथेरोस्क्लेरोसिस. तीसरे था स्लोली प्रोग्रेसिव कॉर्नरी आर्टरी डिजीज. कॉर्नरी आर्टरी डिजीज कोई भी ऐसी डिजीज जो which is going to affect the artery, coronary artery, but it is slowly progressive. तो मायोकार्डियल इंफाक्शन में तो कोई एम्बोलिज्म या कोई ऐसी चीज आ जाए तो इंफाक्ट भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है. या कॉर्नरी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी मायोकार्डियल इंफाक्ट हो सकता है. सो स्लोली प्रोग्रेसिव कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है कि there is a chance that collateral circulation will develop. अब collateral circulation heart की कहाँ कहाँ पे थी मैंने आपको बताया है, but this collateral circulation is not functional all the time, patent नहीं है. लेकिन जब slowly, when there is slowly progressive coronary disease, there is a chance that this collateral circulation may become patent. लेकिन these are not as good as those of the limbs. क्योंकि अगर ये इतना अच्छा होता तो फिर इन्फार्क्ट जो है वो कम होते. उसके बाद एंजाइना पेक्टोरस. So what is the difference between angina pectoris and myocardial infarction? Angina pectoris, that is the pain due to ischemia of the heart. When less blood reaches the myocardium, तो pain होती है which is relieved by rest or sublingual nitroglycerin. This is angina pectoris, pain due to ischemia of the heart which is relieved by rest, और सबलिंगुअल जो टैबलेट होती है या लिक्विड भी होता है नाइट्रोग्लिसरीन का, जिससे रिलीफ हो जाएगा. ठीक है. अगर ये रिलीफ नहीं होता देन इट इज नॉट एंजाइना, दिस इज मायोकार्डियल इंफाक्शन. सो एंजाइना पेक्टोरस वो है जो रिलीव हो जाती है पेन ड्यू टू इस्कीमिया. ओके, सो दिस फॉल्स शॉर्ट ऑफ इंड्यूसिंग द नेक्रोसिस. सो इंफाक्शन नहीं होती, इट फॉल्स शॉर्ट. पेन हो रही है सिर्फ, इट इज जस्ट अ वार्निंग साइन, और रेस्ट करने से पेशेंट को पेन रिलीव हो जाएगी. या वो नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल मींस टंग के नीचे वो लेता है और फिर वो रिलीव हो जाता है.
बाईपास मैंने आपको बताया था कि बाईपास सर्जरी, ये भी क्वेश्चन बहुत आता होता है, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। बाईपास सर्जरी जो होती है उसमें क्या करते हैं, ग्राफ्ट लगाते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी है, ग्राफ्ट कहाँ से हम लेते हैं, ग्रेट सेफनस वेन जो लेग में होती है वो लेते हैं। बिकॉज व्हाई डू वी टेक दैट वेन, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। बिकॉज इट इज रिलेटिवली सुपरफिशियल, लंबी लेंथ अटेन होती है बिकॉज इट इज अ लॉन्ग वेन। और क्या होती है कि इसकी जो कैलिबर है इसका सिमिलर, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉर्नरी वेसल। सो ये हम ले लेते हैं ग्रेट सेफनस वेन। और मैंने आपको डायग्राम जो दिखाया था इसमें क्या होता है कि हम वी अटैच पार्ट ऑफ दिस टू, ये है डायग्राम। सो क्या करते हैं, हम एक साइड अटैच करते हैं असेंडिंग अयोटा में, और सेकंड जो इसका ग्राफ्ट है वो इसको हम लगा देते हैं डिस्टल टू द स्टेनोसिस। सो वी बाईपास दिस स्टेनोसिस। अगर यहाँ है तो ये पार्ट स्टेनोज्ड है तो इस साइड पे सर्कमफ्लेक्स में लगाएंगे। अगर इंटीरियर डिसेंडिंग में है तो एक एक साइड तो इसकी असेंडिंग अयोटा पे लगी, दूसरी इट इज जस्ट बिलो द स्टेनोसिस। सो सेकंड जो इसको स्टेनोटिक एरिया को हम बाईपास करके हम ग्राफ्ट लगा देते हैं। सो दिस इज द कॉर्नरी बाईपास ग्राफ्ट। अब ये कॉर्नरी बाईपास ग्राफ्ट जो है मोस्टली ग्रेट सेफनस वेन का होता है, लेकिन रेडियल आर्टरी भी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर ये होता है कि हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के साथ भी, ठीक है। तो स्टेनोसिस को बाईपास करके हम इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के साथ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। सो ये बाईपास ग्राफ्ट हैं जो यूज होता है अगर ये स्टेनोसिस जो है किसी वजह से और इसको हम ना खोल सकें। लेकिन होता क्या है कि आजकल जो हो रहा है वो एंजियोप्लास्टी होती है। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं कि हम वी पास अ कैथेटर और हम स्टेनोटिक एरिया में पहुंचते हैं, और इसमें हम या तो एक बलून होता है इसके साथ। आई शो यू दिस डायग्राम आल्सो। सो ये है कैथेटर पास कर रहे हैं, ठीक है, और डिफ्लेटेड बलून इसके साथ होता है। व्हेन वी रीच द स्टेनोटिक एरिया इसको हम बलून अप करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, और ये डायलिटेशन हो जाती है आर्टरी की। अब ये पहले होता था, अब भी होता है, लेकिन मोस्टली अब क्या होता है, वी आल्सो हैव थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज इज द एंजाइम व्हिच डिसॉल्व्स दिस। यहाँ पे अगर प्लाक बना है तो उसको डिसॉल्व कर देगा। तीसरी चीज क्या होती है कि यहाँ पे रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं, आजकल जो ज्यादा यूज होता है रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं। ये ब्लेड्स क्या करते हैं कि ये प्लाक को काट देते हैं, ठीक है। ये काटते हैं और फिर ये पेटेंट हो जाता है, ये वाला एरिया स्टेनोटिक एरिया जो है ये इसका कैलिबर रिज्यूम हो जाता है। लेकिन वी डोंट लीव इट एट दैट। उसके बाद हम यहाँ पे स्टेंट भी एक, वी जस्ट लीव अ स्टेंट इन दिस एरिया। तो स्टेंट जो है वो क्या होती है, इट इज जस्ट अ स्मॉल ट्यूबिंग जो जिसके थ्रू पेटेंसी कायम रहती है वेसल की। सो वी हैव दिस स्टेंट आल्सो, वी लीव दैट। सो इस ये सारा प्रोसीजर जो है इसको हम फिर कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और अगर कॉर्नरी एंजियोग्राफी हो तो ग्राफी का क्या मतलब है कि हम इसका एक्सरे ले लेते हैं, वहां पे डाई डालते हैं और इसका एक्सरे ले लेते हैं, तो दैट इज कॉर्नरी एंजियोग्राफी। एंजियो का क्या मतलब है, ब्लड वेसल, और ग्राफी का क्या मतलब है, एक्सरे। तो कॉर्नरी एंजियोग्राफी होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी व्हाट इज दिस इज ईसीजी, और ईसीजी लेते हैं नॉर्मल रेस्टिंग उसमें पेशेंट की स्टेट में। और अगर इसको एंजाइना हो रहा है तो उसको हम क्या करते हैं कि हम एक्सरसाइज उसको ट्रेडमिल पे उसको चलवाते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज देते हैं, वी टेक दी ईसीजी अगेन। तो इन दोनों का फिर डिफरेंस देख लेते हैं कि वो कितनी टॉलरेंस उसमें है, और इसमें इज ही डेवलपिंग साइंस ऑफ एंजाइना या साइंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्ट। तो हमें ये पता चल जाता है कि पेशेंट जो इट इज ही और शी इज गोइंग टुवर्ड्स द इन्फार्क्शन। कॉर्नरी एक्लूजन कंडक्टिंग सिस्टम की बात हो गई थी। So pacemaker, what is a pacemaker? Pacemaker is basically something which initiates the impulse. तो अगर ऐसे नोडल में कोई प्रॉब्लम है, वो इनिशिएट नहीं कर रहा, तो वी कीप एन आर्टिफिशियल पेसमेकर चेस्ट के एरिया में डालते हैं, विच इज बेसिकली बैटरी, और साथ उसके इलेक्ट्रोड्स होते हैं। बैटरी जो है वो स्किन के नीचे हम उसको कर देते हैं स्टिच, और फिर इलेक्ट्रोड्स जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाते हैं, दिस स्टार्ट्स द impulse of the heart. So this acts as the SA node. ओके, सो ये मोटे मोटे जो आपके अप्लाइड एनाटॉमी के पॉइंट्स थे ये मैंने कर दिए हैं। अब
आई होप कोई ऐसी चीज रह नहीं गई जो आपको प्रॉब्लम दे मंडे को। कार्डिक रेफर्ड पेन कहाँ कहाँ पे हो सकती है ये मैंने आपको बता दिया। रेफर्ड पेन जो है वो कार्डिक जो सिंपैथेटिक है वो पेन फाइबर सिंपैथेटिक पाथवे लेती हैं। सो T1 से लेके T4 5 T7 तक भी जा सकते हैं। तो ये जो T1 से लेके T7 तक के डर्मेटोम्स हैं इस इन एरियाज में इनकी रेफर्ड पेन होगी। प्लस लेफ्ट साइड पे तो ये होता है, राइट साइड पे भी जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द कमिश्रल फाइबर्स और कनेक्टिंग फाइबर्स विच आर these are small fibers which are present inside the spinal cord। और ये क्या करते हैं कि ये कनेक्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड को राइट साइड पे भी। तो राइट साइड के भी बॉडी में राइट शोल्डर में भी पेन हो सकती है। कमोशियो कॉर्डस वेरी इंपॉर्टेंट, lethal blow होता है। दिस इज sudden blow to the chest when it is received like during playing or games। अगर sudden blow मिलता है तो क्या होता है कि हार्ट जो है वो उसका रिदम खराब हो जाता है और सडनली कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, या फिब्रिलेशन होती है और उसके बाद अरेस्ट हो जाता है या फौरन अरेस्ट हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड कमोशियो कॉर्डस। हार्ट रिदम की डिसरप्शन बेसिकली होती है। उसमें डिसरप्शन में क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन शुरू हो जाती है और दिस कैन लीड टू कार्डिक अरेस्ट। ठीक है जी। सो दिस वाज अ क्विक रिव्यू जो आपकी मंडे की सब स्टेज के लिए था। और कुछ रह तो नहीं गया? 1 बज गया है। सो बाय फॉर नाउ एंड गुड लक फॉर योर सब स्टेज। खुदा हाफिज।